Dear students, this is Imran Kazmi and we are going to study our 24th lecture of Programming Fundamentals. In this lecture, we will continue our discussion of function calls, that is call by reference, and we will work on pointer arithmetics. In the previous lecture, we started call by reference and we will discuss call by reference in detail in this lecture. Return statement can return only one value from a user-defined function. If we go back in the topic of function, and you may have remembered that we have used return statement to return value. So return statement can return the control immediately back to the calling function, and also it can return a single value to the calling function, back to the calling function. If we need to return more than one values from a user-defined function, return statement cannot help in this matter. So, this issue of returning more than one values can be resolved using call by reference. So if we call a function using values, we can get only one value back to the calling function. But if we use the other option, that is call by reference, we can resolve this matter and can have more than one values back to the calling function. So call by reference has an h over call by value, and that is the number of value that can be returned in the calling function. Let's have an example. Interchange the contents of two variables in a user-defined function. दो वेरिएबल्स के कंटेंट्स को आप इंटरचेंज करें, स्वैपिंग करनी है, और स्वैपिंग भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन में करनी है, जबकि वैल्यूज़ जो इनपुट करनी है वो मेन में करनी है और वैल्यूज़ डिस्प्ले भी मेन में करनी है. तो आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन जस्ट उन वैल्यूज़ को स्वैप करेगा, जबकि वैल्यूज़ इनपुट और डिस्प्ले जो है वो मेन में होंगी. For example, we have a function swap. This is the prototype of swap. And in the list of arguments, we do not have simple variables, rather we have pointer variables. That indicates that this function swap is not being called by values, rather swap is being called by reference because of these pointer variables. So this is call by reference call rather than call by values. And this void indicates that no value is being returned. So how simply it works? We have two variables a and b. A is initialized at 30 and b is initialized at 50. So the value of a before function call, when we will display the value of a, that would display 30 and value of b would display 50. Then the function is called and the call contains, the argument is with addresses. Address of a is being passed and address of b is being passed. So address of a would move to pointer p1 and address of b
would move to pointer P2. So P1 would have the address of A and P2 would have the address of B. Control would transfer in the function swap. There C is a local variable in the function swap. So here is the process how actually works. When we say value at P1, as P1 contains the address of A, so value at the address of A is definitely the value of A. That value of A is assigned to C. Value at P2, P2 contains the address of B, and this address of B means value at the address of B, and this value at the address of B is value of B. This value of B would become the value of A. Similarly, C contains the value of A, and this C would go into the value at the address of B, that is the value of B, so C would go into the B. So on the same addresses, values are swapped using pointers. Again, दोबारा देखें जी इस प्रोसेस को. When this function would be called, address of A would be passed in P1, address of B would be passed in P2. So P1 would have the address of A and P2 would have the address of B. C इसका एक लोकल वेरिएबल है. First statement C equal to value at P1. P1 contain the address of A. When we say value at P1, it means value at the address of A, or value at the address of A is definitely the value of A. That is 30. 30 is assigned to C. So value at P2, P2 contain the address of B. So value at P2 mean value at the address of B, that is the value of B, that is 50. 50 would be assigned to A, as value at P1 is value at the address of A, that is the value of A. So value of B would become the value of A, and similarly the value of C would become the value of B. So this is just like that कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो उन्हीं एड्रेसेस पे स्वैप हो जाएंगी और आपको दोबारा वैल्यूज़ वापस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मेमोरी एड्रेसेस आपके जो है वो यूनिक होते हैं और आपने एड्रेसेस पास किए हैं और उन्हीं एड्रेसेस पे आपने वैल्यू चेंज कर दी हैं. तो जब आपका ये फंक्शन क्लोज होगा, कंट्रोल वापस जाएगा, उसके बाद जब आप वैल्यू ऑफ ए डिस्प्ले करेंगे तो वो वैल्यू ऑफ बी डिस्प्ले करेगा, और जब वैल्यू ऑफ बी डिस्प्ले करेंगे तो वो वैल्यू ऑफ ए डिस्प्ले करेगा. तो स्वैप के फंक्शन ने एड्रेसेस जो है वो मूव किए हैं और उन एड्रेसेस पे वैल्यू चेंज कर दी है, और जब कंट्रोल वापस गया है मेन में, तो जब दोबारा आपने ए और बी की वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाई हैं तो वो चेंज वैल्यू डिस्प्ले हुई हैं बजाय कि वो पहले वाली वैल्यूज़. इट मीन कि फ़र्स्ट टाइम जब ए और बी आपने डिस्प्ले किए तो वो 30 और 50 डिस्प्ले हुए, और जब दोबारा आपने ए और बी डिस्प्ले किए तो वो 50 और 30 डिस्प्ले हुए. वैल्यूज़ आपकी इंटरचेंज हो गई हैं उन्हीं एड्रेसेस में. तो चूँकि वैल्यूज़ उन्हीं एड्रेसेस में इंटरचेंज हुई हैं, आपने कोई वैल्यू वापस नहीं भेजी, इस वजह से आपको यहाँ पे आपने वाइड यूज़ किया है, दैट इंडिकेट दैट नो वैल्यू इज़ बीइंग रिटर्न. तो ये क्लियर है कि उन्हीं एड्रेसेस पे वैल्यू चेंज हुई है, और जब दोबारा आप उन्हीं वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाएंगे तो वो इंटरचेंज वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले होंगी. आप चेक कर सकते हैं. हियर इज़ द आउटपुट कि जब पहले आपने फंक्शन कॉल से पहले ए और बी को डिस्प्ले करवाया था तो वो 30 और 50 डिस्प्ले हुई, और जब दोबारा फंक्शन कॉल के बाद उन्हें डिस्प्ले करवाया आफ्टर द फंक्शन कॉल तो वो 50 और 30 डिस्प्ले हुई, क्योंकि आपके इस फंक्शन ने उन्हीं एड्रेसेस पे वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया, और जब दोबारा कंट्रोल मेन में गया और ए और बी की वैल्यू डिस्प्ले हुई तो वो ऑलरेडी चेंज्ड वैल्यूज़ थी. तो इस तरह से हम एक इनडायरेक्ट मेथड से रेफरेंसेस के ज़रिए हम वैल्यूज़ के वेरिएबल्स के कंटेंट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं. तो आप रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल किए बगैर भी आप इस तरह से वैल्यूज़ को वापस मेन में या किसी भी कॉलिंग फंक्शन में आप एक्सेस कर सकते हैं. Here is another example.
calculate area and parameter of a circle in a user defined function while radius is input in main. तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करना है एक सर्कल का, जबकि रेडियस जो है वो मेन में इनपुट होगा और एरिया और पैरामीटर्स जो है जो दो वैल्यूज़ हैं ये भी मेन में डिस्प्ले होंगी. तो जो फंक्शन है दैट वुड जस्ट कैलकुलेट एंड अगेन द वैल्यू इज डिस्प्लेड इन मेन. तो इस बात का ख्याल रखें कि वैल्यूज़ जो है वो इनपुट भी मेन में होनी है और डिस्प्ले भी मेन में होनी है. इस फंक्शन ने जस्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ किस तरह से वापस मेन में डिस्प्ले होनी है ये चेक करें ज़रा. सबसे पहले हमारा प्रोटोटाइप फंक्शन डेक्लेरेशन. इंट आर एक सिंपल वेरिएबल पास हो रहा है, मीन आर्गुमेंट पास हो रहा है, वैल्यू स्टैरिक ए एड्रेस पास हो रहा है और स्टैरिक पी सेकंड पॉइंटर इंडिकेट दैट अनदर एड्रेस इज बीइंग पास्ड. सो दो एड्रेसेस आपके पास हो रहे हैं, दो पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर हुए हैं जो शो कर रहे हैं कि दो एड्रेसेस पास हो, एक वैल्यू पास हो. We have a simple variable radius and we have two other variable area and parameter. Radius is of type int, area and parameter of type float. So enter radius of a circle. Radius input हुआ, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन में रेडियस की वैल्यू जा रही है, इसके साथ एंड साइन नहीं लगा हुआ, सिंपल वेरिएबल है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जा रही है. एरिया और पैरामीटर का एड्रेस जा रहा है. याद रखें कि जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसकी वैल्यू तो उसे बाद में मिलती है, लेकिन उसने चूंकि बाइट रिजर्व कर ली हैं और चूंकि बाइट रिजर्व हो चुके हैं इसका मतलब यह है कि उन बाइट्स का एड्रेस जो है वो असाइन हो चुका हुआ है या उन बाइट्स को एड्रेस मिल चुका हुआ है. इसलिए अगर उनके पास वैल्यू नहीं भी हैं तो जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन एड्रेसेस आपके वेरिएबल्स के बन चुके हुए. सो जब आपने फंक्शन कॉल किया सर्कल तो इसमें रेडियस की वैल्यू पास की और एरिया और पैरामीटर का एड्रेस पास किया जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, एड्रेस असाइन हो चुका है इन वेरिएबल्स, तो इनका एड्रेस आपने पास किया. तो यहाँ पे जब रेडियस की वैल्यू जाएगी तो वो इस आर में जाएगी, सिंपल वेरिएबल में, सिंपल वैल्यू है तो सिंपल वेरिएबल में जाएगी. एरिया का एड्रेस जा रहा है, एंड साइन एड्रेस ऑफ एरिया, तो चूंकि एड्रेस जा रहा है एरिया का और एरिया की टाइप फ्लोट है तो इसलिए वहाँ पे आपको जो है वो पॉइंटर जो रिक्वायर्ड होगा वो भी फ्लोट टाइप का रिक्वायर्ड होगा. तो एरिया के एड्रेस के लिए आपने ए पॉइंटर एक डिक्लेयर किया, स्टैरिक इंडिकेट कर रहा है कि ये एक पॉइंटर है और उसकी टाइप फ्लोट इंडिकेट कर रही है कि इस पॉइंटर में जो एड्रेस आ रहा है वो भी किसी फ्लोट वेरिएबल का आ रहा है. और सिमिलरली पैरामीटर का भी एड्रेस जा रहा है, इसके लिए भी आपने जो पॉइंटर डिक्लेयर किया है पी, उसकी टाइप फ्लोट जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि इस पी में जो एड्रेस आ रहा है वो भी किसी फ्लोट वेरिएबल का आ रहा है. सो आर में रेडियस की वैल्यू आएगी, इस रेडियस की वैल्यू आर में आएगी और एरिया का एड्रेस इस ए में आएगा और पैरामीटर का एड्रेस जो है वो पी में आएगा. तो जब कंट्रोल इस फंक्शन में ट्रांसफ़र होगा तो वैल्यू एट ए में चूंकि एड्रेस है किसका, एरिया का, तो वैल्यू एट ए मीन वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ ए, दैट इज डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ ए. वैल्यू एट ए, दोबारा सुने, वैल्यू एट ए में चूंकि एड्रेस है किसका, एरिया का, तो इसका मतलब वैल्यू एट ए का मतलब होगा वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ ए, and value at the address of A is definitely equal to value of A. So value of A is equal to 3.14 multiply by R, steric R, pi R square होता है एरिया आपका, तो पाई की वैल्यू 3.14 और फिर R square के लिए R steric R. So this would calculate the value of area and similarly
P contain the address of parameter and value at P mean value at the address of parameter. तो उसी एड्रेस पे वैल्यू कैलकुलेट हो रही है जो एड्रेस इधर से सेंड किया गया है, और सिमिलरली एरिया की भी उसी एड्रेस पे वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो रही है जो एड्रेस इधर से सेंड किया गया। तो जो एड्रेस सेंड किया गया है एरिया का और पैरामीटर का, उन्हीं एड्रेसेस पे वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो जब फंक्शन आपका कंप्लीट होगा, कंट्रोल वापस जाएगा, तो उन एड्रेसेस पे वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। तो जब आप एरिया और पैरामीटर डिस्प्ले करेंगे तो जो वैल्यू कैलकुलेट हुई हैं वो वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी। तो आपने यहाँ पे वाइट लिखा है, दिस वाइट इंडिकेट दैट नो वैल्यू इज़ बीइंग रिटर्न। वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही बल्कि उन्हीं एड्रेसेस पे वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट हो रही है। तो ये मैं बात बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये ना समझें कि पॉइंटर से वैल्यू रिटर्न हो रही है, बल्कि आप एड्रेसेस लेके आ रहे हैं और उन्हीं एड्रेसेस पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए आपको वैल्यू जो है वो वापस नहीं भेजनी पड़ेगी, वैल्यू खुद ब खुद उन एड्रेसेस पे कैलकुलेट हो जाएगी, आप वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसका अगर आउटपुट चेक करें तो ये देखें, रेडियस आपने इनपुट किया 14, उसके बाद एरिया और पैरामीटर आपका कैलकुलेट हुआ और डिस्प्ले हुआ। अब ये जो कैलकुलेशन हुई है ये सारी जो है वो फंक्शन में हुई है और डिस्प्ले जो है वो मेन में हो रहा है। ये देखिए, ये मेन में डिस्प्ले हो रहा है, जबकि कैलकुलेशन जो है वो सारी इस फंक्शन सर्कल में हुई है। तो सर्कल जो है वो तीन चीज़ें लेके आ रहा है, रेडियस की वैल्यू, एरिया का एड्रेस और पैरामीटर का एड्रेस। उन एड्रेसेस पे वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और जब चूँकि एड्रेसेस जो है वो यूनिक होते हैं तो उन्हीं एड्रेसेस पे वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, आपको वैल्यू वापस रिटर्न नहीं करनी होगी। तो जब आप उन एड्रेसेस पे जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले करवाएंगे, एरिया और पैरामीटर, तो वही वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी जो इस सर्कल ने कैलकुलेट की हैं। तो इस तरह से आप कॉल बाय रेफरेंस से आप ये काम कर सकते हैं। Here is a conclusion. From these program we can draw the following conclusion. If we want the value of actual argument should get changed in the function being called pass the argument by reference. तो इसमें फर्स्ट प्रोग्राम में आपने देखा कि हम उन्हीं आर्गूमेंट की वैल्यूज़ जो है वो स्वैप करना चाह रहे थे। तो अगर आप उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ चेंज की हैं, तो उसके लिए उसको कॉल बाय वैल्यूज से ना करें बल्कि कॉल बाय रेफरेंस से करें, तो सेम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस के ज़रिए, एड्रेसेस के ज़रिए। और दूसरा, इफ़ अ फंक्शन इज़ टू बी मेड टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम then return these values indirectly by using call by reference. Yes, in this program हमने एरिया और पैरामीटर्स की वैल्यूज़ जो हमें वापस रिटर्न करवानी थी, तो चूंकि रिटर्न स्टेटमेंट एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकती, तो या हम एरिया रिटर्न करवाते या फिर पैरामीटर। तो चूंकि हमें ये दोनों वैल्यूज़ वापस चाहिए थी, इसलिए हम इसे कॉल बाय वैल्यूज़ से काम नहीं कर सकते थे, हमें फिर ये कॉल बाय रेफरेंस से करना पड़ा। और कॉल बाय रेफरेंस से वैल्यूज़ इनडायरेक्टली वापस चली जाती हैं। इनडायरेक्टली से मुराद यह है कि थ्रू एड्रेसेस आप वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करनी पड़ती। तो अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ वापस चाहिए तो आप फिर कॉल बाय रेफरेंस से जो है वो फंक्शन कॉल करेंगे, उससे आप जो है वो इनडायरेक्टली वैल्यूज़ जो है वो वापस भेज सकते हैं। तो इसमें ये मैं बात अगेन क्लियर कर दूं कि वैल्यू वापस नहीं जा रही बल्कि इनडायरेक्टली आप उन्हीं एड्रेसेस पे वैल्यूज़ जो है वो दोबारा से जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा जो है वो स्वैपिंग से रेलेवेंट है कि हमने उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया। और दूसरा कंक्लूजन हमारा इस प्रोग्राम से रेलेवेंट है जिसमें हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो वापस मेन में भेजी। तो चूँकि रिटर्न स्टेटमेंट में ये एबिलिटी नहीं थी कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ वापस भेज सकती, तो इसलिए यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हमें फिर कॉल बाय रेफरेंस करना पड़ा। और कॉल बाय रेफरेंस से इनडायरेक्टली हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो वापस कॉलिंग फंक्शन में जो है ना वो रिटर्न करवा सकते हैं, जो कि एक्चुअली रिटर्न नहीं होती बल्कि उन्हीं एड्रेसेस पे कैलकुलेट हो जाती हैं जिन एड्रेसेस को हमने सेंड किया होता है।
ओके जी, ये हमने 2 कंक्लूजन ड्रा किए हैं इस कॉल बाय रेफरेंस से। होपफुली ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स जो है वो अभी काफ़ी उसके टॉपिक रहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।